بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عشاء کی نماز کا مکمل طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں اور ان رکعتوں کو کس کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، پورا پریکٹیکل طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ عشاء کی نماز کو پڑھنے کا مکمل طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے وقت ضرور نکالیے۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو عشاء کی نماز میں 17 رکعت ہوتی ہیں۔ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر واجب اور 2 رکعت نفل۔ یہ 17 رکعت ہوتی ہیں اور ان 17 رکعتوں کو پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سنت اور نوافل کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، تو دوستو سنت اور نوافل کو بھی پڑھنے کی عادت بنائیے۔ جس نماز میں جتنی رکعت ہوتی ہیں پوری رکعتوں کو پڑھنے کی عادت بنائیے، کیونکہ جو شخص سنتوں کی پابندی کرتا ہے اس کو قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اگر کسی شخص کی فرض نمازوں میں کوئی کمی رہ جائے گی تو وہ نفل نمازوں کو پڑھنے کی وجہ سے پوری کر دی جائے گی، تو اس لیے سنت اور نفل کو پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں۔ تو دوستو سب سے پہلے ہمیں 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنی ہے۔ اب جب ہم 4 رکعت سنت مؤکدہ کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت سنت وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف۔ پھر اگر مرد حضرات اس نیت کو کر رہے ہیں تو وہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، اور عورت ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دوپٹے کے اندر ہی رکھیں اور دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے مرد حضرات ناف کے نیچے دونوں ہاتھ کو باندھ لیں، اور عورتیں یعنی خواتین بہنیں سینے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اب جب ہم نیت کر لیتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم، اس کو آخر تک پڑھیں۔ پھر اس کے بعد میں تعوذ پڑھیں گے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد میں تسمیہ پڑھیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد میں الحمد شریف پڑھیں یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو ولضالین تک پڑھ کر آخر میں آمین بھی کہہ دیں۔ جب ہم الحمدللہ رب العالمین والی سورت کو پڑھ لیں گے تو پھر تسمیہ پڑھیں گے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت ملائیں جو سورت آپ کو یاد ہو۔ جیسا کہ آپ کی اسکرین پر ہم ابھی آپ کو الم تری کیف والی سورت کو لکھ کر دکھا رہے ہیں۔ ان صورتوں کو بھی آپ ہندی میں دیکھ کر اور اچھے سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ الم تری والی سورت کو پڑھ لیں گے یا آپ کو جو بھی سورت آپ کو یاد ہو اس سورت کو آپ پڑھ لیں تو پھر تکبیر کہیں یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اب رکوع میں جانے کے بعد میں کم سے کم 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں یعنی سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد میں تسمیع کہیں یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اطمینان کے ساتھ بالکل سیدھے کھڑے ہو کر تحمید کہیں یعنی ربنا لک الحمد، اور پھر اس کے بعد میں تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھیں کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ 7 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی۔ جب یہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ اس کو پڑھ چکے ہوں تو پھر تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھ جائیں۔ پھر دوبارہ سے تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں۔ 3 مرتبہ 5 یا 7 مرتبہ اس سجدے میں بھی جو ہے سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلی۔ اب یہ ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ جس طرح سے ہم نے پہلے ہاتھ باندھ رکھے تھے نیت کرنے کے بعد میں، اسی طرح سے اپنے ہاتھ باندھ لیں۔ دوسری رکعت میں ہم ثنا تعوذ نہیں پڑھیں گے، صرف تسمیہ پڑھیں گے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد میں الحمد شریف پڑھیں الحمدللہ رب العالمین کو ولضالین تک پڑھ کر آمین کہہ دیں۔ پھر سے تسمیہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد میں پھر کوئی سورت پڑھیں۔ جیسا کہ اگر ہمیں کم سے کم 10 چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہیں تو ترتیب سے پڑھیں۔ جیسے پہلی رکعت میں ہم نے الم تری والی سورت پڑھی تھی، اب یہ آپ کی اسکرین پر سورہ قریش لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی اسکرین پر لکھی ہوئی سورہ قریش کو آرام سے پڑھیے اور اس کے بعد میں اس کو یاد کر لیجئے۔ اب جب آپ دوسری رکعت میں کوئی سورت پڑھ لیں تو پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلی رکعت کی طرح رکوع کریں۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھیں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھے بیٹھ جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلی۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں اس کے بعد میں تکبیر کہیں اللہ اکبر اور پھر سیدھے بیٹھ جائیں۔ سیدھے بیٹھنے کے بعد میں کیونکہ ہم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے
تو यहाँ पर तशाहुद पढ़ेंगे यानी अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात भी हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहे हैं। ये जितनी भी सूरतें आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही हैं, इन सभी सूरतों की हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतें और तस्बीहात वाली प्ले लिस्ट पर क्लिक करें। उसमें आपको ये सभी सूरतें और तस्बीहात आपको उस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी जो कि हमने पढ़कर बताई है। फिलहाल वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहे हैं। इनको भी आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़कर याद कर सकते हैं। जब आप अत्तहियात पढ़ने में अशहदु अल्ला इलाहा पर पहुंचेंगे तो अपनी शहादत वाली उंगली को उठाएंगे और जब आप इल्लल्लाह बोलेंगे तो इल्लल्लाह पर कहते हुए अपनी उंगली को बिछा लेंगे। फिर जब तशाहुद पूरी मुकम्मल कर लें, अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं तीसरी रकात के लिए। तीसरी रकात में भी दूसरी रकात की तरह यानी तस्मिया पढ़ेंगे, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में फिर कोई सूरत मिला लें। जैसे कि हमने पहली रकात में अलम तरा वाली सूरत पढ़ी, दूसरी रकात में सूरह कुरैश पढ़ी और तीसरी रकात में हम उसके बाद वाली सूरत यानी अरायतल लज़ी वाली सूरत को हम पढ़ लेंगे। जब हम अरायतल लज़ी वाली सूरत को पढ़ लें या आप जो सूरत पढ़ना चाहते हैं उस सूरत को पढ़ लें, फिर तकबीर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जिस तरह से पहले हमने रुकू की तस्बीह पढ़ी है इसी तरह से रुकू की तस्बीह पढ़ें, सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं, फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। देखिए रुकू में और सजदे में जब भी आप जाएं तो हमने तस्बीह जो पढ़कर बताई है उस तस्बीह को आप 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा जितना आपको बेहतर लगे उतनी मरतबा आप पढ़ सकते हैं। फिर जब आप दूसरे सजदे में तस्बीह पढ़ लें तो फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी यानी आखिरी रकात के लिए सीधे खड़े हो जाएं और जिस तरह से हाथ बांध रखे थे वैसे हाथ बांध लें। फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। अब जैसा कि तीसरी रकात में हमने जो सूरत पढ़ी थी, अब चौथी रकात में उसके आगे वाली यानी तरतीब से चलेंगे। पहली रकात में जो सूरत पढ़ी है, दूसरी में उसके बाद, तीसरी में उसके बाद वाली और चौथी में उसके बाद वाली, इस तरह से सूरतों को लगाएंगे। तो अभी तक हमने जो आपको ये सूरतें बताई हैं ये तरतीब से चल रही हैं। अब चौथी रकात में जो है हम इन्ना आतैना वाली सूरत को पढ़ेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर इन्ना आतैना वाली सूरत भी आ रही है, आप इसको अच्छे से पढ़कर आप याद कर सकते हैं। अब जब आपने ये चौथी रकात में सूरत पढ़ ली, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सीधे बैठ जाएं। अब फिर अल्लाहु अकबर कहकर फिर आप सजदे में जाएं सुभान रब्बियल आला, ये तस्बीह आप 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ लें। अब जैसे कि ये चौथी रकात का दूसरा सजदा था, इसको पढ़ने के बाद में हम कादाए आखिर में बैठ जाएंगे। अब इसमें बैठने के बाद में हम तशाहुद पढ़ेंगे यानी सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अब इसके बाद में हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। दोस्तों दुआए मासूरा पढ़ना अफजल है, इसलिए दुआए मासूरा अगर आपको याद ना हो तो हमने स्क्रीन पर ये लिख कर दी हुई है और इसकी एक सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको दुआए मासूरा याद ना हो तो रब्बना आतिना वाली दुआ को भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआए मासूरा जरूर याद कर लें। जब आप दुआए मासूरा पढ़ चुके हैं या रब्बना आतिना वाली सूरत पढ़ चुके हैं तो उसके बाद में दाएं तरफ सलाम फेरें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाएं तरफ सलाम फेरें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा। अब इसके बाद में हम 4 रकात फर्ज पढ़ेंगे। देखिए किसी भी नमाज में जब हम सुन्नतें पढ़ते हैं तो सुन्नत की हर रकात में सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद में बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत लगाना जरूरी होता है। लेकिन जब हम किसी भी नमाज की कोई भी फर्ज पढ़ते हैं तो फर्ज की तीसरी रकात और चौथी रकात में तो उसमें सिर्फ हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर रुकू में चले जाएंगे, उसके बाद में कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। सिर्फ पहली और दूसरी रकात में कोई सूरत पढ़ेंगे, तीसरी और चौथी में नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों अब इशा की 4 रकात फर्ज की नियत करते हैं। नियत करने का तरीका वही रहेगा, या तो आप दिल में इरादा कर लें कि आप इशा की नमाज के 4 रकात फर्ज पढ़ रहे हैं, या अगर जुबान से कहना चाहते हैं तो इस तरह से बोलें नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 4 रकात फर्ज वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के रुख में काबा शरीफ की तरफ। और फिर पहले की तरह दोनों हाथों को मर्द हजरात कानों तक उठाएं और ख्वातीन बहनें अपने कंधों तक दोनों हाथों को उठाकर और नियत को बांध लें। ख्वातीन बहनें अपने जो हाथों को दुपट्टे के अंदर ही रखें, बाहर ना निकालें। अब जब आप दोनों हाथों को बांध लेंगे यानी नियत बांध लेंगे तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे और सना के बाद में तावूज़ पढ़ेंगे यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, जब भी आप नमाज को शुरू करते हैं तो हर नमाज में
सुन्नत हो, चाहे फर्ज हो, चाहे वाजिब हो, चाहे नफल हो, उसकी पहली रकात में सना के बाद में तावुज यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और उसके बाद में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये तीनों चीजें पढ़नी होती हैं। लेकिन ये हर नमाज की पहली रकात में होती हैं। दूसरी, तीसरी और चौथी जब हम शुरू करते हैं तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से पढ़कर शुरू करते हैं। तो अब जैसे कि आप ये पहली रकात पढ़ रहे हैं 4 रकात फर्ज की, तो इसमें नियत बांधकर सना पढ़ें, सना के बाद में तावुज और फिर तस्मिया पढ़ें। तस्मिया पढ़ने के बाद में सूरह फातिहा पढ़कर आमीन कहते हैं और उसके बाद में फिर तस्मिया पढ़ें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के और फिर कोई सूरत पढ़ लें, जो भी सूरत आपको याद हो। तो 10 सूरतें याद जरूर होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम वो 10 छोटी छोटी सूरतें जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं। जैसे कि हमने अभी 4 रकात सुन्नत पढ़ी, उसमें 4 रकात सुन्नत में 4 सूरतें आ गई हैं। अब उसके बाद की जो 4 रकात फर्ज है, इनमें पहली और दूसरी रकात में हमें सूरत मिलानी है। इसमें भी हम उससे आगे वाली सूरतें आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी पूरी सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद में कोई सूरत पढ़े। जैसे कि अभी हमने पिछली 4 रकात सुन्नत में आखिरी रकात में पढ़ी थी इन्ना अतैना कल कौसर। तो 4 रकात फर्ज की जो पहली रकात है इसके अंदर हम सूरह काफिरून पढ़ लेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है। इसको मुकम्मल करके रुकू में जाएं, रुकू में जाके रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा, फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं, फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा करें और दूसरे सजदे में भी तस्बीह पढ़ें। तस्बीह पढ़ने के बाद में फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक यानी आखिर तक पढ़ लेंगे। आमीन कहने के बाद में फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे और कोई सूरत पढ़ लेंगे जो भी आपको याद हो। जैसा कि हम अभी तरतीब से बताते हुए आ रहे हैं, तो अब अगली रकात में हम जो कुल या अय्युहल काफिरून के बाद वाली सूरत पढ़ेंगे, यानी इज़ा जाअ वाली सूरत को पढ़ लेंगे, यानी सूरह नस्र को पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। ये मुकम्मल करके अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, पहला सजदा अदा करें सुबहान रब्बियल आला कहकर इसके अंदर तस्बीह पढ़ लें। अल्लाहु अकबर कहकर फिर सीधे बैठ जाएं, फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं, फिर से तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला। अब उसके बाद में ये दूसरी रकात थी, तो अल्लाहु अकबर कहकर हम अत्तहियात के लिए बैठ जाएंगे और तशाहुद पढ़ेंगे। अब जब अत्तहियात मुकम्मल कर लें तो अल्लाहु अकबर कहकर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब तीसरी रकात को फिर बिस्मिल्लाह से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये इशा के 4 फर्ज हैं। तो तीसरी रकात में और चौथी रकात में कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हम पढ़ लेंगे। आमीन कहने के बाद में फिर हम अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं, फिर अल्लाहु अकबर कहकर फिर दूसरा सजदा अदा करें सुबहान रब्बियल आला कहकर तस्बीह पढ़ लें, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। फर्ज नमाज की ये चौथी रकात है, तो इसमें भी हम सिर्फ बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को आखिर तक पढ़ेंगे वलज़्ज़ालिन तक, और आमीन कहकर फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। इसमें भी कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। जब रुकू में चलेगा तो रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए फिर सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ के अभी चौथी रकात में दूसरा सजदा जब हम कर लेंगे तो फिर अत्तहियात में बैठ जाएंगे। अत्तहियात में अत्तहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें। दुआए मासूरा याद ना हो, अगर दुआए मासूरा याद नहीं है तो रब्बना आतिना वाली दुआ को पढ़ लें और फिर दाएं जानिब यानी सीधी जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरें, फिर बाएं जानिब यानी उल्टी साइड पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरें। किसी भी नमाज के फर्ज आप पढ़ चुके हों तो सलाम फेरने के बाद में फौरन 3 मरतबा पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसके बाद में आप पढ़ें अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। जब ये पढ़ लें तो आप उसके बाद में आयतल कुर्सी पढ़ लें। फर्ज नमाज के बाद में आयतल कुर्सी पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत हदीस में आई है। हदीस में आता है कि जो फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उसको जन्नत में जाने से सिर्फ उसको मौत रोके हुए है। तो आयतल कुर्सी को हम हर फर्ज नमाज के बाद जरूर पढ़ें। तो आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद में अब आप दुआ मांग लें, जो भी आपके दिल में हाजत हो उस हाजत को अल्लाह के सामने रखें, बशर्ते कि जो हाजत है वो जायज होनी चाहिए। तो जो दुआ आपको अल्लाह से मांगनी है उस दुआ को मांग लें। अब उसके बाद में फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा को पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं। आप 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा को पढ़ने के लिए या तो दिल में इरादा कर लें कि आप ईशा की सुन्नत पढ़ रहे हैं,
या फिर नियत इस तरह से करें, नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात सुन्नत वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। और पहले की तरह जैसे मर्द हजरात को कानों तक हाथ उठाकर नियत बांधनी है नाफ के नीचे, और ख्वातीन बहनों को कंधों तक हाथ उठाने हैं और सीने पर नियत बांधनी है, और अपने हाथों को जो है दुपट्टे के अंदर ही रखना है। अब नियत बांधने के बाद में पहली रकात में सना से शुरुआत करेंगे। सना पढ़ने के बाद में तावुज़ पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया पढ़ें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वला ज़ालिन तक पढ़ लें और आमीन कह दें। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत पढ़ेंगे जो भी आपको याद हो। तब्बत यदा वाली जो सूरत है उसको हम पढ़ेंगे। ये वाली सूरत भी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको आप देखकर अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। जब ये सूरत पढ़ लें, ये जो भी सूरत आपको याद हो वो पढ़ लें, तो फिर तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएं, सुबहान रब्बियल आला, ये तस्बीह को 3 मरतबा 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ लें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं, सुबहान रब्बियल आला, ये तस्बीह फिर 3 5 या 7 मरतबा पढ़कर फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब दूसरी रकात में हम बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वला ज़ालिन तक पढ़कर आमीन कह दें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर आगे वाली सूरत को पढ़ें। तो इस दूसरी रकात में सूरह इखलास को हम पढ़ लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। जब दूसरी रकात में हम कोई सूरत पढ़ लें तो रुकू में जाएं, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर उसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, सुबहान रब्बियल आला, ये तस्बीह पढ़ लें। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा अदा करें, सुबहान रब्बियल आला, ये तस्बीह पढ़कर फिर अल्लाहु अकबर कहकर अत्तहियात के लिए बैठ जाएं। क्योंकि ये 2 रकात नमाज थी तो अब हम अत्तहियात पढ़ लेंगे। अत्तहियात में बैठने के बाद में अत्तहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें, फिर सीधी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर दें, बाईं तरफ उल्टी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर दें। तो दोस्तों ये था आपका 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा का तरीका। बिल्कुल इसी तरह से 2 रकात नफल भी पढ़ने हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको तफसील से बताया जाए, तो इसीलिए हम 2 रकात नफल को भी आपको पढ़कर बता देते हैं। अब 2 रकात नफल को पढ़ने के लिए अब इसी तरह से नियत करेंगे। दिल में इरादा कर लें कि आप इशा की 2 रकात नफल पढ़ रहे हैं, या फिर जुबान से इस तरह से कहें, नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात नफल वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए मर्द जिस तरह से हाथ बांधते हैं नाफ के नीचे, कानों तक हाथ उठाएं और नाफ के नीचे हाथ बांध लें। ख्वातीन बहनें कंधों तक हाथ उठाएं, दुपट्टे के अंदर ही हाथ होने चाहिए और सीने पर हाथ बांध लें। फिर पहले की तरह सना से शुरुआत करेंगे। सना पढ़ें, तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, और उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वला ज़ालिन तक पढ़कर आमीन कहें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर यानी तस्मिया पढ़कर कोई सूरत पढ़ें। जैसे कि पहले हमने जो पढ़ी थी कुल हु अल्लाहु अहद तक हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में जो आती है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक यानी सूरह फलक आती है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो इसको पढ़ लें सूरह फलक को, या जो आपको याद हो उसको पढ़ लें। और उसके बाद में फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर कह के फिर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कह के दूसरे सजदे में जाएं, फिर सुबहान रब्बियल आला कह के तस्बीह पढ़ें, और फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब फिर दूसरी रकात में जब हम खड़े होते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वला ज़ालिन तक पढ़ें आखिर तक, और आमीन कहते हैं। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत पढ़ें। जैसे कि अब हमने इसमें सूरह फलक पढ़ी है, तो आखिर में इसके बाद वाली सूरत आती है सूरह नास यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास, वो भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, उसको भी आप पढ़कर आराम से याद कर सकते हैं। जब हम दूसरी रकात में कोई सूरत पढ़कर मुकम्मल कर लें तो अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर दूसरे सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें, उसके बाद में फिर अत्तहियात में अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। अब ये 2 रकात नफल है, तो इसमें भी अत्तहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और दुरूद शरीफ के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। दुआए मासूरा याद ना हो तो रब्बना आतिना वाली दुआ को पढ़ लें, लेकिन दुआए मासूरा जल्द से जल्द याद करें और उसी को इसके अंदर पढ़ें। फिर जब दुआए मासूरा या रब्बना आतिना वाली दुआ को पढ़कर निमट जाएं तो पहले की तरह सलाम फेरें, दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो दोस्तों ये आपकी 2 रकात नफल भी मुकम्मल हो गई। अब जैसे कि हम आपको बता चुके हैं 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात नफल, 12 रकात को मुकम्मल तरीके से हमने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया है।
اب ہم 3 رکعت وتر واجب پڑھیں گے۔ واجب کا جو درجہ ہے فرض کے برابر ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم فرض کو اگر چھوڑ دیں گے تو ہمیں گناہ ہوگا، اسی طرح سے اگر ہم واجب بھی چھوڑ دیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو واجب کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ تو واجب کی نیت اس طرح سے کریں گے، نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 3 رکعت وتر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر مرد حضرات اس نیت کو کر رہے ہیں تو وہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، اور عورت ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دوپٹے کے اندر ہی رکھیں اور دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے مرد حضرات ناف کے نیچے دونوں ہاتھ کو باندھ لیں، اور عورتیں یعنی خواتین بہنیں سینے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اب جب ہم نیت کر لیتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا یعنی سبحانک اللہم، اس کو آخر تک پڑھیں۔ پھر اس کے بعد میں تعوذ پڑھیں گے، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد میں تسمیہ پڑھیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد میں الحمد شریف پڑھیں یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین کو ولضالین تک پڑھ کر آخر میں آمین بھی کہہ دیں۔ جب ہم الحمدللہ رب العالمین والی سورت کو پڑھ لیں گے تو پھر تسمیہ پڑھیں گے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت ملائیں جو سورت آپ کو یاد ہو۔ جیسا کہ آپ کی اسکرین پر ہم ابھی آپ کو الم تری کیف والی سورت کو لکھ کر دکھا رہے ہیں۔ جب آپ الم تری والی سورت کو پڑھ لیں گے یا آپ کو جو بھی سورت آپ کو یاد ہو اس سورت کو آپ پڑھ لیں تو پھر تکبیر کہیں یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اب رکوع میں جانے کے بعد میں کم سے کم 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں یعنی سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد میں تسمیع کہیں یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اطمینان کے ساتھ بالکل سیدھے کھڑے ہو کر تحمید کہیں یعنی ربنا لک الحمد، اور پھر اس کے بعد میں تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھیں کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ 7 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی۔ جب یہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ اس کو پڑھ چکے ہوں تو پھر تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھ جائیں۔ پھر دوبارہ سے تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ 5 یا 7 مرتبہ اس سجدے میں بھی جو ہے سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلی۔ اب یہ ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ جس طرح سے ہم نے پہلے ہاتھ باندھ رکھے تھے نیت کرنے کے بعد میں، اسی طرح سے اپنے ہاتھ باندھ لیں۔ دوسری رکعت میں ہم ثنا تعوذ نہیں پڑھیں گے، صرف تسمیہ پڑھیں گے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد میں الحمد شریف پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین کو ولضالین تک پڑھ کر آمین کہہ دیں۔ پھر سے تسمیہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد میں پھر کوئی سورت پڑھیں۔ جیسے پہلی رکعت میں ہم نے الم تری والی سورت پڑھی تھی، اب یہ آپ کی اسکرین پر سورہ قریش لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی اسکرین پر لکھی ہوئی سورہ قریش کو آرام سے پڑھیے اور اس کے بعد میں اس کو یاد کر لیجئے۔ اب جب آپ دوسری رکعت میں کوئی سورت پڑھ لیں تو پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلی رکعت کی طرح رکوع کریں، رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم 3 5 یا 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھیں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھے بیٹھ جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلی۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں اس کے بعد میں تکبیر کہیں اللہ اکبر اور پھر سیدھے بیٹھ جائیں۔ تو دوسری رکعت میں جب ہم التحیات میں بیٹھیں گے تو یہاں پر تشہد پڑھیں گے یعنی التحیات پڑھیں گے۔ التحیات بھی ہم آپ کو اسکرین پر لکھ کر دکھا رہے ہیں۔ جب آپ التحیات پڑھنے میں اشہد اللہ الہ پر پہنچیں گے تو اپنی شہادت والی انگلی کو اٹھائیں گے، اور جب آپ الا اللہ بولیں گے تو الا اللہ پر کہتے ہوئے اپنی انگلی کو بچھا لیں گے۔ پھر جب تشہد پوری مکمل کر لیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت میں بھی دوسری رکعت کی طرح یعنی تسمیہ پڑھیں گے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں پھر کوئی سورت ملا لیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلی رکعت میں الم تری والی سورت پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھی، اور تیسری رکعت میں ہم اس کے بعد والی سورت یعنی آیت الذی والی سورت کو ہم پڑھ لیں گے۔ جب ہم آیت الذی والی سورت کو پڑھ لیں یا آپ جو سورت پڑھنا چاہتے ہیں اس سورت کو پڑھ لیں۔ اب یہ وتر کی تیسری رکعت ہے، اور جب ہم وتر کی تیسری رکعت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کی سورت پڑھنے کے بعد میں کوئی سورت ملا لیتے ہیں، تو اس کے بعد میں رکوع میں نہیں جاتے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ سے نیت باندھ لیتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر دعائے قنوت پڑھیں۔ دعائے قنوت بھی آپ کی اسکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ جب دعائے قنوت مکمل پڑھ لیں
फिर तकबीर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जिस तरह से पहले हमने रुकू की तस्वीर पढ़ी है, इसी तरह से रुकू की तस्वीर पढ़ें, सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, सजदे की तस्वीर पढ़ें, सुभान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और तस्वीर पढ़ें, सुभान रब्बियल आला। इसको पढ़ने के बाद में हम कादाए आखिर में बैठ जाएंगे। अब इसमें बैठने के बाद में हम तशहुद पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अब इसके बाद में हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। दोस्तों दुआए मासूरा पढ़ना अफजल है, इसलिए दुआए मासूरा अगर आपको याद ना हो तो हमने स्क्रीन पर ये लिख कर दी हुई है और इसकी एक सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको दुआए मासूरा याद ना हो तो रब्बना आतिना वाली दुआ को भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआए मासूरा जरूर याद कर लें। जब आप दुआए मासूरा पढ़ चुके हैं या रब्बना आतिना वाली सूरत पढ़ चुके हैं तो उसके बाद में दाईं तरफ सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर बाईं तरफ सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों ये 3 रकात वित्र वाजिब भी मुकम्मल हुए, यानी अब तक हमारी 15 रकात मुकम्मल हो चुकी हैं। अब आखिर में हमें 2 रकात नफल पढ़ने हैं। दोस्तों 2 रकात नफल को पढ़ने का कोई अलग तरीका नहीं है। अभी जो हमने 3 रकात वित्र पढ़ने से पहले हमने आपको बताया था 2 रकात नफल पढ़ने का तरीका, बिल्कुल सेम हूबहू वही तरीका है। उसी तरह से 2 रकात नफल पढ़े जाएंगे। तो 2 रकात नफल की नियत कीजिए और 2 रकात नफल की नियत करने के बाद में आप उसी तरह से 2 रकात नफल भी पढ़ लीजिए। तो दोस्तों ये था ईशा की नमाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका। अब आखिर में भी हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें और दुआ करने के बाद में ये जो नमाज है मुकम्मल हो जाती है। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। दोस्तों इस वीडियो को किसी जरूरतमंद के पास तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो अगर किसी के पास जाएगी और इससे किसी एक ने भी अच्छा अमल कर लिया, किसी एक ने भी अगर नमाज पढ़नी सीख ली, तो उसके सवाब में आपका और हमारा भी जो है हिस्सा हो जाएगा। तो सदका जारिया की नियत से इसको आगे भी शेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको ये बेहतर लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।